تو اس خاص شمارے میں آج جو 5 خبریں شامل کر رہے ہیں ہم اس میں سب سے پہلی خبر کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر جموں کے بیس کیمپ میں امرناتھ مسافروں کا پہلا جتھا روانہ ہو چکا ہے اور 1 جولائی سے یہ یاترا شروع ہو رہی ہے۔ دراصل ہر دن 7500 یاتری اس میں درشن کر پائیں گے، جبکہ دوسری خبر کی بات کی جائے تو جموں کشمیر کے بڈگام سے ہے، جہاں پر سیکیورٹی فورسز کا ملیٹنٹوں سے تصادم جاری ہے اور اس دوران 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی یہاں پر خبر ملی تھی۔ اس کے علاوہ تیسری خبر کی بات کی جائے جو کہ کافی اہم ہے کہ وادی کشمیر میں پہلے گولڈ میڈلسٹ میوزیشین شہزادہ عاصم نے سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کتاب کی رسم اجرا کی اور کتاب کا نام دی اسکرپٹ آف نیچر تھا۔ ساتھ ہی چوتھی خبر کا ذکر کیا جائے تو سری نگر میں پہلے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ آنکھوں کی روشنی سے محروم کھلاڑیوں نے بہترین مظاہرہ کیا۔ پانچویں خبر کی بات کی جائے تو ادبی مرکز غیور فاؤنڈیشن اپنے پروگرام کا انعقاد کرے گی اور اس فاؤنڈیشن میں کشمیری تہذیب و تصادم کو زندہ رکھنے کے لیے کئی پروگرامز کا انعقاد جنوبی کشمیر کے پلوامہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں جموں کشمیر اور ڈالتے ہیں نظر جموں کشمیر کی خاص خبروں پر۔ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں سید تجمل۔ بہت بہت شکریہ شہباز۔ ناظرین، جموں کشمیر سے ابھی تک کی 5 اہم خبروں کا خلاصہ کرنے ہم سری نگر اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ براہ راست مخاطب ہیں، اور آج ہمارے ساتھ معزز مہمان جو ہیں پہلے گولڈ میڈلسٹ جو ہمارے جموں کشمیر کے موسیقی میں ہیں ڈاکٹر شہزاد عاصم، ان کی ریسرچ کے تئیں ہم بات کریں گے تاکہ جموں کشمیر سے جو ایک ادبی ہمارا رشتہ رہا ہے ملک کے ساتھ، تعلیمی رشتہ رہا ہے، اس کو کیسے بہتر استوار کیا جا سکتا، اور لائف لائن اور انسپیریشن ہمارے یوتھس کے لیے ڈاکٹر شہزاد عاصم سے بات چیت کا سلسلہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ لیکن نظر ڈالتے ہیں ابھی تک کی 5 اہم خبروں کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں ابھی تک کی 5 اہم خبریں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ناظرین، امرناتھ یاترا جو ہے آج سے شروع ہو گئی، اس میں کچھ اہم چیزیں آپ کو جاننی بہت ضروری ہے۔ جب آپ یاترا کے لیے سفر پہ روانہ ہوں گے تو 5 چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ امرناتھ یاتریوں کا پہلا قافلہ آج جموں سے سری نگر روانہ ہو گیا اور جو بعد میں بالتل کی اور روانہ ہوگا، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ سری نگر قومی شاہراہ پر جو ہے اب کی بار جو ہے 1 وے ٹریفک ہوگا، یعنی کسی بھی ٹریفک کو گاڑی کو جموں سے سری نگر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ صرف امرناتھ یاترا سے منسلک لوگ جو ہیں وہی اس سفر کا آج آغاز کریں گے، اور بعد میں 3 بجے کے بعد جو ہے سری نگر کے لیے ٹریفک جو ہے ہلکی گاڑیوں کا روانہ کیا جائے گا، جبکہ بھاری گاڑیاں جو ہے بعد میں مال بردار گاڑی جو ہے شام 7 بجے سے 11 بجے رات جو ہے روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری اہم خبر، جی ہاں ناظرین، سینٹرل کشمیر کا بڈگام علاقہ، آج صبح بڈگام علاقے میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع حفاظتی عملوں کو ملی۔ فوری طور پر گورنمنٹ فورسز نے اس ایریا کا سرچ آپریشن کیا۔ بالکل جی ہاں، دوسری خبر جو ہے وہ بڈگام کے حوالے سے ہوگی، اور پہلی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یاترا کے حوالے سے یاتریوں کا پہلا قافلہ جو ہے وہ آج روانہ ہو چکا ہے، جبکہ بڈگام میں اس وقت سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ میں خونین مارکہ آرائی جاری ہے۔ ابھی تک 1 ملیٹنٹ کے مارے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ جی ہاں، اس سے قبل چکپورہ بڈگام جو کہ بگام سے چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، یہاں پر ایک ملیٹنٹ کو گزشتہ روز مارا گیا تھا۔ الصبح سیکیورٹی فورس کو اطلاع ملی تھی، لیکن چکپورہ اور بگام کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ڈسٹنس زیادہ نہیں ہے، لہذا لگاتار جو مرکز سیکیورٹی فورسز کا ہے وہ پوری طرح سے صرف سینٹرل کشمیر بڈگام شپین کے بعد یہ دوسرا علاقہ ہوگا جو کہ مڈ 90s میں ملیٹنسی کا جو مین پاور اس میں تھا بہت زیادہ تھا۔ سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ ہی یہ پتا چلا کہ اس علاقے میں 2 سے 3 ملیٹنٹ چھپے ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، تیسری اہم خبر، ریاست جموں کشمیر میں ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی اور ٹیلنٹ کے حوالے سے یہ کہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ اب تعلیمی نظام میں بھی نوجوانوں نے بہت سے اہم کارناموں کا سلسلہ شروع کیا۔ دراصل سری نگر کے انفارمیشن آڈیٹوریم میں کل بعد دوپہر ایک پروقار تقریب کے دوران ڈاکٹر شہزاد عاصم کو اپنی ہی کتاب ریلیز کرنے کے لیے کیلسٹر یونیورسٹی کے HODs اور ماہرین کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور سکاروں کی بڑی تعداد نے سراہا۔ ڈاکٹر شہزاد عاصم نے اپنا
सफर जो है शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर से शुरू किया, बाद में HMT श्रीनगर रिहाइश पजीर हुए और न सिर्फ उन्होंने इंटेलेक्चुअल की हैसियत से बल्कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हैसियत से भी काम किया और सियासत में भी कदम रखा, लेकिन बाद में अपनी रिसर्च पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। आज हमारे मेहमान होंगे, इनके साथ गुफ्तगू अब से कुछ देर बाद जारी रहेगी। नाज़रीन, इसके बाद चौथी अहम खबर रियासत जम्मू कश्मीर से अभी तक की। आपको याद होगा कि कुदरती आजमाइशों के दौरान से गुजर रहे अफराद की हौसला अफजाई के लिए कई डिपार्टमेंट्स मर्ज वजूद में लाए गए, लेकिन बाद में जो है हासिल उतना ज्यादा नहीं हुआ। दरअसल श्रीनगर में DPS पांथा चौक ने एक पहल की, मैदान फराहम किया, टेक्निकी सपोर्ट फराहम किया और जिस्मानी तौर जो नाखेज अफराद हैं और नाबीना अफराद जो हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक जो है रेड्स, ब्लूज, ग्रीन और पर्पल की टीमें जो हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन जो है 2 मैच खेले गए, कल आज भी 2 मुकाबले होंगे। इख्तामी तकरीब पर मेहमान खुसूसी होंगे कंसर्न डिसेबिलिटीज के कमिश्नर इकबाल लोन, जो कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे और इनामात तकसीम करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ कि जिस्मानी तौर फिट खिलाड़ियों के लिए जहां आलमी कप से लेकर IPL के लिए मैदान सजाए जाते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर नाखेज और नाबीना अफराद के लिए कश्मीर से आवाज उठी कि अब इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, 5वें और अहम खबर। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर को अदबी मस्कन भी कहा जाता है, लेकिन शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर में गुज़श्ता 20-25 बरसों के दौरान इन एक्टिविटीज में नुमाया तौर पर कमी वाक़या हुई। दरअसल गयूर फाउंडेशन कल्चरल एकेडमी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग का इनेकाद किया, जो कि इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम श्रीनगर में मुनक़िद हुई और यह मीटिंग 2 बजे शुरू हुई, तकरीबन 5 बजे इजलास खत्म हुआ। गयूर फाउंडेशन का पुराना स्ट्रक्चर जो था, ओहदों में तब्दीलियां की गई, नए जनरल सेक्रेटरी कलीमुल्लाह अब जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि इंदिराबी साहब जो है वाइस चेयरमैन होंगे और सईद शौकत गयूर बुदस्तूर फाउंडेशन के चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब किए गए, जबकि उर्दू अकादमी गयूर फाउंडेशन का भी कयाम अमन अब बहुत जल्द अमन में लाया जाएगा। नाज़रीन, ये हमारी आज की 5 अहम खबरें। शुरुआत करते हैं आज तक की, अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आगाज आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ और जम्मू से जत्था जो है पहली बार रवाना हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में जो है पिलग्रिम मौजूद थे और अब की बार 3 अहम चीजें कर दी गई है। कौमी शहरा पर ट्रैफिक यकतरफा होगा, आज सिर्फ ज़ायरीन को चलने की इजाजत होगी। जम्मू से कल रात रवाना होने के बाद आज सुबह काफिला जो है बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ और रवानगी से कबल IGP ट्रैफिक ने हिदायतनामा जारी किया कि कौमी शहरा पर आज ट्रैफिक जो है 2 तरफा नहीं चलेगा। सिविल ट्रैफिक मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक जो है सड़कों पर दौड़ता नजर आएगा। इसी के साथ अब की बार एक अहम पेशरफ्त हुई, सैटेलाइट ट्रैकर लगाया गया है ताकि गनमैन की तरफ से, मिलिटेंट की तरफ से अगर हमला किया जाए तो उसको पहले ही ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा 300 मजीद इजाफी कंपनीज जो है CRPF और बाकी एजेंसीज की उन्हें तैनात कर दिया गया ताकि नुनवन बेस कैंप और अमरनाथ गुफा पर दर्शन से कबल सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम को बेहतर किया जाएगा और आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह अमल शुरू होगा। इसलिए आज जो ट्रैफिक है कौमी शहरा पर वो 3 बजे के बाद ही चलता नजर आएगा, उससे कबल सिर्फ अमरनाथ यात्रा से जुड़ा ट्रैफिक ही सड़कों पर दौड़ता नजर आएगा। इधर रियासती पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने ऊपरी इलाकों का दौरा किया और इंतजामात का भी जायजा लिया। अब यह देखना होगा कि मिलिटेंटों के अटैक लगातार होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नर इंतजामिया अब की बार इस यात्रा को किस तरह से आसान तरीके से अंजाम दे। ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप का बयान आया, यात्री हमारे मेहमान हैं और इन्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह का मिला जुला रद्द-ए-अमल समाज के मुख्तलिफ तबकों से लगातार मौसूल हो रहा है। नाज़रीन, दूसरी खबर आपको अब फाइनल अपडेट दे दें। बडगाम में जो इनकाउंटर अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ था, दरअसल आज सुबह नमाज फजर से कबल इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद 55 RR CRPF SOG जम्मू कश्मीर पुलिस ने एरिया का सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन किया। एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। यह है बुगाम का इलाका। हालांकि आलू सब्जी काश्त के लिए इलाका काफी मौजूद है, यहाँ पर काफी जरखेज है, लेकिन इसके बावजूद भी इन ऑर्चर्ड्स में मिलिटेंटों और फौज के बीच में अभी तक जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है। और नाज़रीन, अब आज के अहम मौजू की तरफ चलते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को मजीद मौसर और बेहतर करने के लिए अब नौजवानों ने ठान ली कि वो सरकार के पे ज्यादा डिपेंड रहने के बजाय
इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी हेड्स पे ही डिपेंड रहना चाहेंगे। दरअसल श्रीनगर में इंफॉर्मेशन के ऑडिटोरियम में एक पुरवकार तकरीब के दौरान डॉक्टर शहजाद आसमी की अब की बार हौसला अफजाई की गई, बुक रिलीज की गई और ठान ली डॉक्टर शहजाद आसमी ने कि मौसीकी में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में और भी है इदारे और भी डिपार्टमेंट हैं जिन पर अब बातचीत करना लाजमी है। तो सीधे रुख करते हैं अपने मेहमान खुसूसी डॉक्टर शहजाद आसमी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज सुबह सुबह जी सलाम में इस इतवार को और खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए, यहाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, गुलकारी के बाद आपने अब जो अपना सफ़र थीसिस सबमिट किए और जो आपने कहा कि अब वो कई डिपार्टमेंट्स में जो है अपनी थीसिस कंप्लीट करने के बाद, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद एक ख्वाब सजा है आपका कि आप एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों के लिए एक मिशल राह बने आपका जो दिखाया हुआ रास्ता है। क्या ये पॉसिबल है सरकार की मदद के बगैर? देखिए, जब मैंने पीएचडी की तो मुझे लगा कि मैं अब नौकरी के लिए करूं, लेकिन जब इंसान कुछ करना चाहे, क्योंकि इंसान को इतना ही नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि इंसान दरअसल यही सोचता है कि नहीं, अगर आज मैं अपने लिए करूं लेकिन जाते जाते मैं ऐसा भी कुछ काम कर जाऊं जिससे सब लोगों के लिए फ़ायदा हो, सब लोगों के लिए मशाल राह बने। तो ये मेरे जहन में पहले आया, तो मैंने एक पीएचडी सीक्रेट ऑफ म्यूज़िक में की। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और भी कई पीएचडीज़ मैंने फिर अपने नाम कर दी। उसमें मैंने फ़िलासफ़ी में पीएचडी कर दी, साउंड एंड एकॉस्टिक्स में पीएचडी कर दी और म्यूज़िकोलॉजी में भी पीएचडी कर दी। और मुझे ये भी मौका मिला कि मैंने फॉरेन जो कंट्रीज़ है, हमारे टर्की है, यूएसए है, लंदन और हमारी जो जर्मनी की हेजनबर्ग ये रिसर्च काउंसिल है, वहाँ पे मुझे कम्युनिकेट करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ अपने जो हमारी स्टेट के हेड है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, उनके साथ भी बाज़ाब्ता तौर कॉन्फ्रेंसेस की, मीटिंग्स की। लेकिन मुझे यही समझ में आया कि नहीं, मुझे जो भी करना है इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च एज पर द रिसर्च इज कंसर्न मुझे लगता है कि इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं, क्योंकि रिसर्च एक अनलिमिटेड चीज़ है। तो जो बुक रिलीज हुई, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो मुल्क में हमारे इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं कि कश्मीर से हमारे साथ डॉक्टर शहजाद जुड़ चुके हैं, इस बुक रिलीज के बारे में बताएगा और इस रिसर्च के बारे में। ये मैंने बहुत सारी थेरीज को कंपाइल करके इसको एक बुक का नाम दिया है, जिसका मैंने नाम लिखा है द सीक्रेट ऑफ नेचर। दरअसल मैं साउंड पे पहले काम करता था और मैंने साउंड को एक्सप्लोर किया कि ये म्यूज़िक जो है ये असल में है क्या, साइंटिफिकली कैसे मैस्मराइज करता है, कैसे इंसान को अट्रैक्ट करता है, कैसे रिफ़्रेश करता है और हाउ म्यूज़िक थेरेपी वर्क्स। तो इस पे मैंने काम करना चाहा, इस पे मैंने काम बहुत किया, क्योंकि अभी दुनिया में अभी ये बहुत कम है। क्योंकि अभी म्यूज़िक का हम सेकंड पोर्शन देखते हैं, जैसे कंपोजिशंस हैं, राग रागनीज हैं या सॉन्ग्स हैं, इंसान तो अभी तक उन्हीं को जानते हैं। लेकिन बेसिक इसका है क्या, इसका क्रक्स क्या है, इसका सीड क्या है, साइंटिफिकली ये क्या है, वो मैंने स्क्वीज़ आउट किया, वो मैंने दुनिया के सामने लाया। लेकिन साथ ही ये मैं आगे बढ़ता गया और मैंने सीक्रेट ऑफ नेचर दिया। उसमें मैंने थेरीज और भी है, जिसमें पार्टिकल फिजिक्स के हवाले से मैं आगे बढ़ता गया, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट अब दुनिया के सामने में ला रहा हूँ जल्द ही, वो है एंटी मास कॉन्सेप्ट। रियासत जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्टूडियो से हम बराह रास्त जुड़े हैं। डॉक्टर शहजाद आसमी आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर और रियासत जम्मू कश्मीर में म्यूजिक के पहले जो हैं इन्होंने पीएचडी की, उसके बाद बाकी महकमों की तरफ भी आप देख रहे हैं। यूथ आइकन के तौर पर जम्मू कश्मीर में माने जाते हैं, काफ़ी समाजी कामों में हिस्सा लिया। लेकिन फिलहाल चंद और खबरें शामिल करते हैं, वापस चलते हैं फिर मेहमान के पास। नाज़रीन, नाबीना और जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की हौसला अफजाई हमारे लिए शायद बाइस इफ्तिखार हो सकती है। अल्लाह की दी हुई हर तोहफे को नेमत के तौर पर लिया जाता है और जो लोग जिस्मानी तौर नाखेज हैं, जो लोग बीनाई से महरूम हैं, इन्हें भी कुदरत की आजमाइशों के तौर पर हमें लेना होगा और अल्लाह का तोहफा समझ कर लेना होगा। आइए चलते हैं डीपीएस स्कूल श्रीनगर, जहां पर कल इस मैच जो है शुरू हुए। इस टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हिस्सा लेते हैं जो जिस्मानी तौर नाखेज नहीं है बल्कि नाबीना है, यानी रोशनी से कम। इन्हें अब क्रिकेट मैदान में हम देख पा रहे हैं। सिर्फ आलमी सतह पर हम देखते हैं और लोकल सतह पर कि जिस्मानी तौर बेहतर अफराद जो हैं वो इन मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन हौसला अफजाई यह है कि डीपीएस श्रीनगर और हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने आपकी बात ठान ली कि इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। 2-3 दिन मुकाबले जारी रहेंगे और ये एक सफ़ीर के तौर पर उभरेंगे। और जब एम्पायर और बाकी लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वहाँ पर देखते हैं, इबरत भी हासिल होती है कि अल्लाह ने जिन तोहफों से हमें नवाजा, हमें उनकी कदर करनी होगी और फ़र्ज शराज भी रहना होगा। जो लोग जिस्मानी तौर पर इस लेवल पर नहीं है, हमें उनका हाथ बांटना होगा, उनका
उनका बाजू पकड़कर उन्हें आगे चलाना होगा। दरअसल इस टूर्नामेंट का मकसद होगा कि ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करना जो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं लेकिन समाज में हिस्सा नहीं है। मैदानों की कमी है, लेकिन DPS ने मैदान खोलकर, दरवाजे खोलकर साबित कर दिया कि तालीम के साथ साथ ऐसे अफराद की हौसला अफजाई बनती है, जिसके लिए डिसेबिलिटीज के कमिश्नर मोहम्मद इकबाल लोन पूरा दिन वहां पर मौजूद रहे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी होती रही। नाज़रीन, ऐसी पहली चैंपियनशिप कश्मीर से शुरू हुई जहां पर कुदरती आजमाइशों के शिकार अफराद जो है, खिलाड़ी जो हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज मुकाबले इख्ताम पजीर होंगे और सलाम पे इसका कवरेज जो है लगातार जारी रहेगा। नाज़रीन, पांचवी अहम खबर आज इतवार को हम उठाते हैं कि अदबी मरकज के हवाले से। दरअसल गयूर फाउंडेशन का सूरज उस वक्त तलू हुआ जब जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके में माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में गुलाम रसूल गयूर मारूफ शायर का कत्ल किया गया। दरअसल नामलूम बरदारों ने रमज़ान के महीने में रोज़ों की हालत में गुलाम रसूल गयूर का कत्ल किया गया। उसके बाद इस फाउंडेशन को गयूर फाउंडेशन के तौर पर सामने लाया गया और उनके जो फर्जंद है सैयद शौकत गयूर को अबूरी चेयरमैन भी मुंतखब किया गया और ये अदबी, लिटरेचर और समाज में जो चैलेंज हैं उनके लिए काम करते हैं, सोशल जस्टिस में इंतहाई अहम रोल अदा करें। इसके अलावा लिटरेचर और बाकी कामों में भी ये आगे पेश रहा। दरअसल कल श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इंतखाबात अमल में लाए गए और सैयद शौकत गयूर को फौरी तौर पर चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि कलीमुल्लाह अब इसके जनरल सेक्रेटरी होंगे और पुरानी बॉडी को तहलील कर दिया गया। और भी ओहदे जो हैं उस वक्त बनाए गए और जो नए नाम होंगे उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। दरअसल 15 जुलाई से जनूबी कश्मीर के पुलवामा रत्नीपोरा से एक अहम इजलास होगा जिसमें 1200 के करीब डेलीगेट्स जम्मू कश्मीर से इसमें हिस्सा लेंगे और गयूर साहब के तई उनके शायराना मोहब्बत को आगे लाया जाएगा। वाज़ह है कि काफ़ी तादाद में उनकी किताबें इस वक्त मंजर आम पे हैं, जो कि कल्चर एकेडमी और बाकी स्टॉल्स पे जो है इस वक्त मौजूद हैं और इन्होंने कश्मीरी, उर्दू और फारसी में ज़बरदस्त शेर व शायरी की है, जिसके नुस्खे मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त दस्तयाब रखे गए हैं।